سنبریال کے نواحی گاؤں میں غیرت کے نام پر دوہرے قتل کی واردات۔ سفاق شخص نے کاروکاری کے الزام پر اپنی بھتیجی اور ماجد نامی نوجوان کو قتل کر دیا۔ پولیس نے مفرور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اکاڑا کے علاقے کوٹ ماری کے قریب ٹریفک حادثہ۔ تیز رفتار گاڑی نے شہری کو کچل ڈالا۔ حادثے کے بغیر بعد ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب۔ ریسکیو ٹیم نے لاش کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ قصور پولیس کی کامیاب کارروائی۔ آصف نامی 12 سالہ لڑکے کے قاتل کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس تحقیقات کے مطابق ملزم شہزاد نے آصف کو قتل کر کے لاش کھیتوں میں پھینک دی تھی۔ سیالکوٹ تھانہ سنبریال کے علاقے میں خاتون پر تشدد کا معاملہ۔ ویڈیو وائرل ہونے پر DPO کا نوٹس۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم ندیم نے معمولی تنازع پر اپنی بھابھی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اور عمر کوٹ کی تحصیل کنڈری میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں اضافہ۔ ایک ہی رات میں موٹر سائیکل چوری کی 2 وارداتیں پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گئیں۔ شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروق خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز۔ اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دادو کی تحصیل جوہی سمیت کاچھو کے متعدد علاقے زیراب ہونے کی وجہ سے زمینی رابطے منقطع۔ علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سیلاب کے بعد علاقہ مکینوں کو وبائی امراض کا بھی سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ متعلقہ اعلیٰ حکام فوری نوٹس لیں۔ اکاڑا کے علاقے کوٹ پاری کے قریب ٹریفک حادثہ۔ تیز رفتار گاڑی نے شہری کو کچل ڈالا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے لاش کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ترنٹا کا رہائشی محمد نصیر ٹریفک حادثے میں معذور ہونے کے باعث شدید مالی مشکلات کا شکار ہونے لگا۔ متاثرہ شخص نے حکومت اور مخیر حضرات سے امداد کی اپیل کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں غلام علی کی اس رپورٹ میں۔ ترنٹا محمد پناہ کے نوائی علاقہ ترنٹا گرگیج کا رہائشی غریب محنت کش نوجوان محمد نصیر بے بسی اور لاچار زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ محمد نصیر کے گھر میں بھوک و افلاس کے ڈیرے ہیں۔ محمد نصیر 1.5 سال قبل روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا تھا۔ کمر میں چوٹ لگنے سے چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ علاج کی گھر سے تمام جمع پونجی لگا دی مگر مکمل علاج نہ ہو سکا۔ محمد نصیر کے 6 چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ محمد نصیر گھر کا واحد کفیل تھا۔ جب سے وہ چارپائی پر محصور ہوا ہے تو اس کے گھر میں بھوک و افلاس کے ڈیرے ہیں۔ محمد نصیر نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ السلام علیکم، میرا نام نصیر احمد ہے، والد محمد سلیم، تحصیل لیاقت پور، ضلع رحیم یار خان کو۔ سر 17 ماہ پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہے، ریڑھ دی ہڈی کا مسئلہ بن گیا۔ میں جتنی بھی جمع پونجی لاہور تک آپریشن کرا کے آیا، والی کامیاب کرتا۔ میں حکومت وقت کو، صوبائی حکومت کو، مخیر حضرات کو اپیل کرنا کہ میرا سرکاری سطح تے علاج کرایا ہوئے، میری مالی امداد کی ہوئی۔ میں ہی ٹائم بہت پریشان ہاں۔ میں اگر پاکستان دے سب تو دکھی انسان ہے تو میں ہی ہاں۔ میرا علاج کرایا ہوئے، مہربانی کی ہوئی، میرا احساس کریا ہوئے۔ میرے ابو کا 17 ماہ پہلے ایکسیڈنٹ تھے، ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ گئی، جن میں تو ٹول پھر نہیں سکتا۔ سارے کہنے جی جمع پوجی ہے صاحب تو لا سکے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ میرے ابو کا علاج کرایا ہے کہ نصیر کی بے بسی اور غربت سے یہ راز بھی عیاں ہوتا ہے کہ حکومتی امداد بھی اصل حقداروں تک نہیں پہنچ پاتی۔ محمد نصیر اور اس کے معصوم بچے کسی مسیح کے منتظر ہیں۔ انہوں نے DCO رحیم یار خان، کمشنر بہاولپور، حکومت پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سمیت مخیر حضرات سے مطالبہ کیا ہے
कि मेरा सरकारी स्टाफ पर इलाज करवाया जाए और मेरी माली मुआवनत भी की जाए ताकि मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे 2 वक्त की रोटी पेट भर कर खा सकें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ठल के नवाही गांव खान मोहम्मद बरोड़ो में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की वारदात। सफाक शख्स ने कारोकारी के इल्जाम पर अपनी भतीजी और माजिद नामी नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाश को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कसूर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। आसिफ नामी 12 साल लड़के के कातिल को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस तहकीकात के मुताबिक मुल्जिम शहजाद ने आसिफ को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाना चाहा और मज़ाहमत पर लड़के को कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी थी। सियालकोट थाना समड़ियाल के इलाके में खातून पर तशद्दुद का मामला। वीडियो वायरल होने पर DPO का नोटिस। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम नदीम ने मामूली तनाज़े पर अपनी भाभी फरजाना को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। फिरोज वटुआ में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मजीद जानते हैं फिराज अहमद की इस रिपोर्ट में। थाना बिक्की के इलाका फिरोज वटुआ चौकी इंचार्ज समीउल्ला गोंदल की जराइम पेशा नासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई यहाँ जारी। मुतअद्दिद मंशियात फरोश, चोर और डाकुओं को FIR के अंदराज करवा कर पाबंद सलासल कर दिया। अहले इलाका का समीउल्ला गोंदल के बारे में कहना था कि समीउल्ला चौकी इंचार्ज जो है वो हमारे फिरोज वटुआ में तैनात है और बहुत ईमानदार ऑफिसर है और मेरी दिली दुआ है कि इन्हें पंजाब लेवल पे आला पोस्टों पर होना चाहिए। ये जी साढ़े चौकी इंचार्ज साहब जोड़े आए ने बहुत अच्छे बंदे ने, मेरिट पे फैसला करते हैं, ठीक है, बहुत ही आवाम वास्ते बेस्ट बंदे। गोंदल साहब फिरोज वटुआ चौकी इंचार्ज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नशरियों को और जो चोर डाकू हैं उनको पकड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इस जैसा अफसर हर जगह पर तैनात होने चाहिए और अच्छी कारकर्दगी है उनकी और अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द अच्छी और पोस्ट अता करे। अस्सलामुअलैकुम। भिक्खी थानेदार ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ ਵਟਵਾ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। यानी जड़े मुचस्सी फिल्मी शादी जो बादियाँ फड़ी जा रहे हैं बहुत अच्छा काम है। यानी मुल्क से जवाब दे जाइए वो करिए ना चीज़ा मुकनियाँ चाहिए ने इस तरह के अच्छे मुलाजम होर भी होने यानी इन्होंने अच्छा वह होर मिल जाते अच्छे काम कर रहे हैं। साढ़े ना यहो जो बंदे अच्छे हैं असं पसंद कर रहे हैं। आम का ये भी कहना था कि ये जब से तैनात हुए हैं मेरिट पर फैसले करते हैं और ऐसे अफसर जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में तैनात होने चाहिए। कैमरामैन अकरम। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चिन्योट में CIA इंचार्ज हाजी नसरुल्लाह की अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुल्जिम राशिद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम के कब्जे से 17 मसरूका मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। लसपेला में कस्टम माहुकाम की कार्रवाई। मुसाफिर बस की चेकिंग के दौरान नायाब नस्ल के कीमती परिंदे शाहीन बरामद कर लिए। कस्टम हुकाम और महकमा वाइल्ड लाइफ लसपेला ने शाहीन परिंदों को खुली फिजा में आज़ाद कर दिया। कस्टम हुकाम के मुताबिक परिंदों को कराची स्मगल किया जा रहा था। आपको एक बार फिर बताएं कि लसपेला में कस्टम हुकाम की कार्रवाई। मुसाफिर बस की चेकिंग के दौरान नायाब नस्ल के कीमती परिंदे शाहीन बरामद कर लिए गए। कस्टम हुकाम और महकमा वाइल्ड लाइफ लसपेला ने शाहीन परिंदों को खुली फिजा में आज़ाद कर दिया। कस्टम हुकाम के मुताबिक परिंदों को कराची स्मगल किया जा रहा था। उमरकोट की तहसील कुनरी में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा। एक ही रात में मोटरसाइकिल चोरी की 2 वारदातें पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गईं। मुतासरा अफराद एहसान और रियाज का आला पुलिस अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे हैं।
हाफिजाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस मोहम्मद उस्मान चीमा की सरबराही में कार्रवाइयाँ की गईं, जिसके दौरान फूड अथॉरिटी टीमों ने 797 मकामात पर वाक़ फूड पॉइंट्स को चेक किया। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर 67 फूड पॉइंट्स को 7,98,500 रुपये के जुर्माने आयद किए गए और भारी मिकदार में ज़ायदुल मियाद और मुसरे सेहत अशिया को तल्फ किया गया। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा इरफान अली काठिया का कहना है कि शहरियों को रिलीफ देने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने कहा है कि सरकारी इदारे लोगों की सहूलत और अवामी मुफाद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएं। लोगों की मुश्किलात और मसाइल का हल हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है, जिसे किसी सूरत गर्दानी नहीं की जा सकती। प्राइस मजिस्ट्रेट्स ग्रान फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ करें। लोगों के लिए तकलीफ का बाइस बनने वाले अनासिर किसी सूरत काबिल माफ़ी नहीं है। प्राइस मजिस्ट्रेट्स अशियाए ज़रूरियात की मुकर्ररा नरखों पर फ़रोख्त और क्वालिटी को यकीनी बनाएं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ज़िला के प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी के जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए किया। इस मौका पर इजलास को बताया गया कि रवा माह में प्राइस मजिस्ट्रेट्स ने 20,334 छापे मारे, 145 मुकदमात दर्ज करवाए गए, 30 दुकानों को सील किया गया, जबकि 97 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया और 21,14,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। कैमरा टीम के साथ दाऊद राजपूत, ब्यूरो चीफ, कोहिनूर न्यूज़, ओकाड़ा। ठरी मीरवाह के नवाही गांव में चोरी की वारदातों में इजाफा। पुलिस जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने में नाकाम है। मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। आला पुलिस अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। आपको एक बार फिर बताएं कि ठरी मीरवाह के नवाही गांव में चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। पुलिस जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने में नाकाम है। मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। आला पुलिस अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया। हरीपुर में तहसील चेयरमैन समीउल्लाह खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि फंड्स की अदम अदायगी के बायस मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन तहसील कौंसिल हरीपुर समीउल्लाह खान ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पूरा सूबा माली बुरान का शिकार हो चुका है। टीएमए हरीपुर समेत पिशावर, डीआई खान और नौशहरा अरबों रुपए के डिफाल्टर हो चुके हैं, जिसका हमें भी सामना करना पड़ रहा है और मजबूरी तौर पर 1 लाख से ज्यादा मुलाजमीन मुतासिर हो रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द सूबाई हुकूमत अपने वादे के मुताबिक फंड जारी करके मुलाजमीन की तनख्वाह की अदायगी को मुमकिन बनाएगी। अवाम किसी प्रोपेगेंडे में न आए। ट्यूबवेल्स की बिजली मुनक़ता होने में मेरा कोई किरदार नहीं। चंद अनासर मेरे खिलाफ सियासी प्रोपेगेंडा करके हमारी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि टीएमए हरीपुर के माहाना 5 करोड़ से ज्यादा के अखराजात हैं, जबकि हमारा बजट 2 करोड़ है। इसकी आमदन में इजाफे के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी के टैक्सेस और किराए के मद में इजाफा जल्द मुतवक्के है। समीउल्लाह खान ने कहा है कि मैं अवाम को रिलीफ देने आया हूँ, मुश्किलात में इजाफा करने नहीं आया। जल्द सेहतियाब होकर दोबारा अवाम के साथ राब्ते में रहूंगा। मीडिया को चाहिए कि हक व सच का प्रचार करे। कोई भी खबर चलाने से पहले हमारा मौक़िफ़ भी लेना चाहिए। झंग में यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया करप्शन माफिया के सामने बेबस हो गई। मसीह जानते हैं जावेद इकबाल गवास की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने पूरी कौम को जलील और ख्वार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऊपर से यूटिलिटी स्टोर माफिया ने करप्शन के नए नए तरीके अपना लिए। अंदर से स्टोर खाली पड़े हैं, बार इंसानियत का तमाशा बना रखा है। 100 में हमने सौदा लेना तो अब गरीब बंदा 400 का आटा ले, 200 का सौदा भी ले, ना 200 हो तो वो सौदा भी नहीं ले सकता। अंदर खाली जगह पड़ी है, फिर भी 2-2 को अंदर लेके जा रहे हैं और 2-2 को बाहर निकाल रहे हैं। ये नहीं कि भाई एक बार पूरी लाइन अंदर ले जाएं और फिर बाहर निकाल दें। यूटिलिटी स्टोरों पर गरीब लोगों को देने के बजाय होटल मालकान और दुकानदारों को सस्ता आटा, चीनी और घी देने का इंकशाफ हुआ है। इन्हों को मौजूदा मिला चौक तो लैके बाजार तक इन्होंने कुछ होटल वाले, पकौड़े समोसे वाले, उन्होंने पेटियां बैरो बैर चवाते नहीं। मैं खुद इन्होंने देखा है, मैं झूठा करा रहा था, मैं खुद इन्होंने देखा है। इन्होंने देंदे इन्होंने मंथली दे के जाने पैसे वसूल पहले कर दें, बाद दोपहरी फिर कहते मशीन खराब हो गई, एक मशीन चल नहीं रही, यूं हो गया वहाँ हो गया। अब आएगा उधर से आर्डर आएगा, फिर मिलेगा घी ने, घी की पेटियां वही उनको देते हैं। ये पकौड़े समोसे वाले मैं खुद इनके पास देखे हैं, होटल वाले खुद इनके पास देखे हैं। ये मुंह पे खड़े हैं, ये जानते मिला चौक पे, उनको खुद ये डिलीवरी करते हैं। ये खुद साथी का नंबर लिख के 55 पे MS करें, जो कोर्ट आएगा वो हम
वो मशीन के अंदर ऐड करेंगे, फिर वो ओके करेगी, फिर हम सामान देंगे, खासकर चीनी, घी और आटे के लिए। अगर यूटिलिटी स्टोर पर करप्शन करने वाले माफिया के खिलाफ एक्शन न लिया गया तो गरीब आवाम डूब जाएगी। फतेह जंग शहर में जगह जगह तजावुजात की भरमार के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर अटक हसन वकार राचीमा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। आपको एक बार फिर बताएं कि फतेह जंग शहर में जगह जगह तजावुजात की भरमार के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर अटक हसन वकार चीमा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सरगोदा में डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकामात जारी किए गए। मजीद जानते हैं मंजूर अंसारी की इस रिपोर्ट में। गड़ामुड़ में मेन मुल्तान रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से हादसात का रुनमा होना मामूल बन गया, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने मुतल्लिका आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लैया DHQ हस्पताल में डायलिसिस मशीनें खराब होने के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं मलिक फैज भुलर की इस रिपोर्ट में। MSDHQ हस्पताल की लापरवाही, मुतादिद डायलिसिस मशीनें ख़राब, मरीज़ जलीलो ख्वार, घंटों इंतज़ार की सूली पे चढ़ गए। तकलीफ़ दे अमल मज़ीद तकलीफ़ दे बन गया। मशीनों की मुरम्मत में लापरवाही काबिल मज़म्मत। मरीज़ों और लवाकिन का एहतजाज, फौरी तौर पर मशीनों को मुरम्मत कराने का मुतालबा। डिस्ट्रिक्ट हस्पताल हेडक्वार्टर लैया के डायलिसिस वार्ड में कुल 11 मशीनें नस्ब की गई हैं, जिन पर 24 घंटे मरीज़ डायलिसिस कराने के लिए शेड्यूल में रहते हैं, मगर इन मशीनों में से 3 मशीनें कई रोज़ से ख़राब हैं, जिसके बहस मरीज़ों को डायलिसिस कराने के लिए टाइम नहीं मिल रहा और इनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो रहा है। मरीज़ इंतहाई तकलीफ़ दे अमल डायलिसिस कराने के लिए जलीलो ख्वार और घंटों इंतज़ार करने पर मजबूर हैं, जिससे इनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो रहा है। मरीज़ों और इनके लवाकिन ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लैया में पहले ही मशीनें मरीज़ों की तादाद के हिसाब से कम हैं और इनमें से भी ख़राब होने पर बहुत मसाइल हो रहे हैं, जबकि MSDHQ हस्पताल की जानिब से मशीनों की मुरम्मत में सुस्ती, लापरवाही काबिल मज़म्मत है। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर लैया, CEO हेल्थ अथॉरिटी लैया, MSDHQ हस्पताल लैया से मुतालबा किया कि ख़राब डायलिसिस मशीनों को फौरी तौर पर मुरम्मत कराया जाए और मशीनों की तादाद में भी इजाफा किया जाए ताकि मरीजों की मुश्किलात और तकलीफ में कमी हो सके। MSDHQ हस्पताल डॉक्टर खादिम हुसैन से मौक़िफ़ लेने के लिए बार बार राब्ते की कोशिश की, मगर उन्होंने राब्ता करना मुनासिब ना समझा। कैमरा टीम के साथ मलिक फैज भुल्लर। फरीदाबाद में अहम शहरा टूट फूट का शिकार होने के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। नारंग मंडी में नादरा की गलती के बायस खातून को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाले फौजी जिसने सन 1971 में 3 साल भारतीय जेलों में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, आज उसकी बेवा शनाख्ती कार्ड के असूल के लिए दर बदर भड़क रही है। नादरा ने गलती से उसके शनाख्ती कार्ड पर फ़ोटो किसी और औरत की लगा दी। गलती भी नादरा की है, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं। इस मुल्क में सरहदों की हिफाजत करने वालों के साथ भी ये नारवा सलूक क्यों रवा रखा जा रहा है? आइए सुनते हैं बेवा और उसके। मेरी वालदा का नाम सैया बीबी है। साढ़े गाँव के एक मोबाइल टीम आई ही शनाख्ती कार्ड बनाने वास्ते। अज तो 10 साल पहला उन्होंने जो शनाख्ती कार्ड भेजा तो मेरी वालदा के शनाख्ती कार्ड के पते के उत्ते किसी दूसरी बीबी की तस्वीर लगी थी। असी वो शनाख्ती कार्ड लैके शेहू पर चले गए। उत्थे अहाँ जाके शनाख्ती कार्ड मरीद के जाके जमा कराई था, लेकिन उस तो बाद साडा शनाख्ती कार्ड सानू नहीं मिलिया। असी शनाख्ती कार्ड के सिलसिले च शेहूपुरा, मरीद के, लाहौर, इस्लामाबाद तक सारे दरखास्तां है, सारा रिकॉर्ड है साडा भेजा, लेकिन साडा शनाख्ती कार्ड नहीं बनया। सानू बड़ी परेशानी है। साडे वालिद साहब सन 1971 दे विच कैदी रहे ने ते कैदी होने तो बाद छोटे छोटे हाँ साडे वालिद जेड़ा हालात हाँ बड़ी मुश्किल के नाल गुजारे ने।
ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਖਤੂਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤੂਨ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਨ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। रोज़ सानू चक्कर से चक्कर, रोज़ दूसरा दिन आ जाओ जे, कल आ जाओ जे, परसों आ जाओ जे, कोई साडा मसला हल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी करके इसकी तवज्जो दी जाए और साडा शनाख्ती कार्ड बनाया जाए। सराय नौरंग के नवाही इलाके में मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया गया। इलाका मकीनों की जानिब से इस इकदाम को खूब सराहा गया। मज़ीद जानते हैं लकी मरवत से शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। तहसील सराय नौरंग के मेयर हाजी अजीजुल्लाह खान मरवत ने अंसार फाउंडेशन यूके के तावन से कोट का गुलाम कदर में मस्जिद अबू बकर तामीर की नई तामीर होने वाली मस्जिद का इफ्तिताह अंसार फाउंडेशन यूके के सदर मलिक फ़ारूक खान और तहसील सराय नौरंग के मेयर हाजी अजीजुल्लाह खान मरवत ने किया। इफ्तिताही तकरीब में अंसार फाउंडेशन यूके के कंट्री डायरेक्टर किफ़ायतुल्लाह खान और एडमन ऑफिसर जाहिद शाह समेत बड़ी तादाद में मुआज़्ज़ीन इलाका ने शिरकत की। तकरीब में अमायदीन इलाका ने मस्जिद की तमीर पर अंसार फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान और तहसील सराय नौरंग के चेयरमैन हाजी अजीजुल्लाह खान मरवत का शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब करते हुए हाजी अजीजुल्लाह खान मरवत का कहना था कि हस्ब रिवायत इलाके की तरक्की और पसमंदगी के ख़ात्मे के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और वो दिन दूर नहीं जब लकी मरवत का शुमार सूबे की तरक्की याफ्ता अजला। सूबाई डेंगू मॉनिटरिंग कमेटी का सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अख्तर मलिक और चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। इजलास में सूबे में डेंगू की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया गया। हाई रिस्क अजला में फ़राइज़ से गफलत बरतने वाले डेंगू वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि स्टेक होल्डर्स डेंगू के अदाद शुमार में हम आहंगी के लिए राब्ता कार बढ़ाएँ। डेंगू मॉनिटरिंग, सर्विलियंस और रिपोर्टिंग के निज़ाम में पाई जाने वाली खामियां दूर की जाएँ। डेंगू की सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला और शेखुपुरा में इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत भी की गई हैं। महकमा बल्दियात का 4000 नई भर्तियों का फैसला। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशर हुसैन की हिदायत पर लोकल गवर्नमेंट्स को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के मुताबिक दर्जा चहारम के 720 मुलाजमीन की भर्तियों का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। ग्रेड 1 से 4 तक मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे। माजूर अफराद के लिए 3% और अक़लियतों के लिए 5% कोटा रखा गया है। ख़वातीन के लिए 15% कोटे के तहत भर्तियाँ होंगी। सेक्रेटरी बल्दियात ने हिदायत की है कि चीफ ऑफिसर्स पॉलिसी के मुताबिक मेरिट पर भर्तियाँ यकीनी बनाएं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तकरीबात 6 नवंबर से शुरू होंगी। मरकजी तकरीब 8 नवंबर को जन्म अस्थान ननकाना साहब में मुनक्किद की जाएगी, जिसमें भारत समेत दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्री शिरकत करेंगे। चेयरमैन मतरूके वक्फ़े इमलाक बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी का कहना है कि तकरीबात के तमाम इंतज़ामात को फूल प्रूफ बनाया गया है। भारत समेत दीगर ममालिक से आने वालों की बेहतरीन मेहमान नवाजी की जाएगी। यात्रियों को सिक्योरिटी, रिहाइश, मेडिकल और ट्रांसपोर्ट समेत दीगर तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी। म्यू हस्पताल लाहौर के अमले पर फायरिंग का मामला। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर हस्पताल मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि इससे कबल भी हाफिज ज़ीशान को धमकियां दी गई थीं। उन्होंने हस्पताल इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि मुलजिम राना शाहिद का ठेका कैंसिल करके कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने फायरिंग के वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। मुजाहिरीन ने कहा कि मुलजिम की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा।
आपको एक बार फिर बताएं कि म्यू हस्पताल लाहौर के अमले पर फायरिंग का मामला पेश आया। मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर हस्पताल मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि इससे कबल भी हाफिज ज़ीशान को धमकियां दी गई थीं। उन्होंने हस्पताल इंतजामिया से मुतालबा किया कि मुलजिम राना शाहिद का ठेका कैंसिल करके कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने फायरिंग के वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। मुजाहिरीन ने कहा कि मुलजिम की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की खसूसी हिदायत पर गदागरी के खात्मे के लिए लाहौर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अक्टूबर के महीने में 171 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर गदागरी के खिलाफ शहर भर में रोजाना की बुनियाद पर रेस्क्यू टीम की जानिब से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पंजाब भर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जिली दफातर में रेस्क्यू टीमों ने 486 भिखारी बच्चों को अपनी तहवील में लिया है। अगर बात करें लाहौर की, तो लाहौर शहर में गुज़श्ता माह 171 भिखारी बच्चों को अपनी तहवील में लिया है। तहवील में लेने वाले भिखारी बच्चों में 137 लड़के और 34 लड़कियां शामिल हैं। आपको बताता चलूं कि इन भिखारी बच्चों को कैंपस पुल, गुलबर्ग मेन मार्केट, जोहर टाउन, अकबर चौक, भट्टा चौक, डिफेंस, बरकत मार्केट, करीम ब्लॉक, मून मार्केट, MM आलम रोड और दीगर इलाकों से रेस्क्यू किया गया है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने कहा कि इंसदादे गदागरी मुहिम के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीमें मुतहर्रक हैं। शहरी भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का साथ दें और भिखारी बच्चों और भिखारी माफिया के खिलाफ हेल्पलाइन 1121 पर इत्तला दें। जी, बहुत शुक्रिया आसिम राजा, आप अपडेट कर रहे थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से तलाल चौधरी, आबिद शेर अली, नुमान अहमद लंकड़ियाल, मलिक रशीद अहमद खान और सैयद साजिद मेहदी की मुलाकातें सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर बातचीत की गई। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के साबिक अदवार में महंगाई की शरह कम और मुईशत बेहतर थी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा तालीम, सेहत समेत हर शोबे में आम लोगों की फलाह व बहबूद के इक़दामात उठाए। वज़ीर आज़म के किसान पैकेज के ऐलान से मुईशत पर मस्बत असरात होंगे। वफाकी हुकूमत के ज़रई पैकेज से किसानों को रिलीफ मिला। पूरी कोशिश है अवाम को महंगाई और दीगर मसाइल से निजात दिलाई जाए। अमूर कश्मीर की कीमती अराजी पर कमर्शल तामीरात का सिलसिला ना थम सका। पटवारी की मुबैना मिली भगत से कीमती अराजी पर कब्जा करवाया जाने लगा है। अमूर कश्मीर की कीमती अराजी पर कमर्शल तामीरात का सिलसिला थम नहीं सका। पटवारी की मुबैना मिली भगत से कीमती अराजी पर कब्जा करवाया जाने लगा। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, अमूर कश्मीर की कीमती अराजी पर कमर्शियल तामीरात का सिलसिला ना थम सका। मुनव्वर नामी पटवारी की मुबैना मिली भगत से कीमती अराजी पर कब्जा करवाया जाने लगा है। अमूर कश्मीर की कीमती अराजी को कौड़ियों के भाव बेचे जाने का इंकशाफ हुआ है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह अमूर कश्मीर की कीमती अराजी पर कमर्शियल तामीरात की जा रही है। BRB भम्मा रोड का वाकया अमूर कश्मीर की कीमती अराजी पर कमर्शियल हाल की तामीर के साथ प्लॉटों की कटिंग भी जारी है। मुशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कहना के अहकाम के बावजूद अमूर कश्मीर की कीमती अराजी पर कब्जे न रोके जा सके हैं। जी, बहुत शुक्रिया सलमान, आपने अपडेट किया। इलाहाबाद के नवाही इलाके में वेलफेयर एसोसिएशन का अहम इजलास हुआ। मजीद जानते हैं अरशद सावल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल जी, गिलन वेलफेयर एसोसिएशन गिलन 68 का अहम इजलास जिसमें ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। निकासी आब व दीगर किए गए फलाई कामों का जायजा लिया गया और इस माह नवंबर में मेडिकल कैंप के इनकाद के हवाले से इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। मेडिसन और डॉक्टर्स के हवाले से इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए भरपूर मशावरत की गई। मेम्बरान व ओहदेदारान के लिए कार्ड्स जारी करने और गिलन वेलफेयर एसोसिएशन के सब दोस्तों के लिए अलामती जैकेट्स बनवाने की सिफारिश पर गौर किया गया। गेलन के रहायशियों और दुकानदारों की सिक्योरिटी और पूरे कस्बा को सेफ विलेज बनाने के लिए ठेकरी पेरा और गांव के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों और मेन बाजार में CCTV कैमरे लगाने के हवाले से एक तफसीली जामिया प्लान मरतब किया गया और इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरे कस्बा को मंशियात फरोशों, चोरों, डाकुओं और ऊंडागर्द अनासर से महफूज रखने के लिए CCTV कैमरे नस्ब कर दिए जाएंगे।
ताकि कस्बा में आने जाने वालों व दीगर तमाम सरगर्मियों पर नजर रखी जा सके और इसे मॉनिटर किया जा सके। तमाम अहबाब दोस्त बुजुर्गों से अपने विलेज के रहायशियों व कारोबारी हजरात से इस प्रोजेक्ट की तकमील व तसनीब व कामयाबी के लिए दुआए तावन की दरख्वास्त है। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और इसकी दीपालपुर में चेयरमैन कायमा कमेटी फूड सिक्योरिटी MNA राव मोहम्मद अजमल खान ने पासपोर्ट ऑफिस अमले के हमरा बिल्डिंग का जायजा लिया और मजीद बेहतरी की हिदायत दी। उनका कहना था कि बिल्डिंग का तामीराती काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी अमनो खेल कॉन्फ्रेंस में शरीक गैर मुल्की मंदूबीन के लिए महफिल मौसीकी का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी बख्तियार खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा सियाहत और सकाफत के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रहे हैं। गैर मुल्की मंदूबीन की पेशावर आमद और यहाँ के सियाहती मकामात की सैर व तफरीह इस वजह से भी ज़रूरी थी ताकि पेशावर और पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया को पेश कर सकें। आपको बताएं कि पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी अमनो खेल कॉन्फ्रेंस में शरीक गैर मुल्की मंदूबीन के लिए महफिल मौसीकी का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी बख्तियार खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत और सकाफत के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रहे हैं। गैर मुल्की मंदूबीन की पेशावर आमद और यहाँ के सियाहती मकामात की सैर व तफरीह इस वजह से भी ज़रूरी थी ताकि ये पेशावर और पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया को पेश कर सके। ओकाड़ा में ज़िला इंतज़ामिया ने हुकूमती अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में कचरे को आग लगाना मामूल बन गया, जिसके बायस स्मोक में इजाफा होने लगा है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रावलपिंडी के पटवार खानों में मुंशी माफिया ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। 1500 से लेकर 10,000 तक रिश्वत लेकर फर्द जारी की जा रही है, जबकि असल पटवारी कभी कभार अपने दफ्तर में आते हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग समेत PTI ने भी पटवार कल्चर के खात्मे के बुलंदोबांग दावे किए थे, मगर पटवार माफिया मजबूत नजर आ रहा है। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद रावलपिंडी से हमारे ब्यूरो चीफ इफ्तिखार भट्टी से। जी इफ्तिखार भट्टी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, रावलपिंडी में मोहदा चक जलालुद्दीन मोहदा गिरजा के अंदर मंसूर अहमद नामी पटवारी हैं, जिनका ऑफिस रावलपिंडी डोकसीदा रोड पर वाक़ है, जहां पर मुंशी माफिया जो सरगर्म है। हुकूमत पंजाब की तरफ से पटवार खानों में मुंशी रखने पर पाबंदी लगाई की थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन और बदनवानी की चीजें रोकना। लेकिन उससे बालातर ला कर पटवार खानों के अंदर इस वक्त मुंशी हजरातों ने मुकम्मल तौर पर चार्ज संभाला हुआ है और आए दिन करप्शन के इल्जाम इन पर लगते सामने आए। लेकिन कोहिनूर टीम की टीम को जो आज वीडियो मौसूल हुई है, जिसके अंदर पटवार खाने में एक मुंशी अपने जगह पर बैठकर रिश्वत वसूल कर रहा है और 15,000 से लेकर 10,000, 500,000 जिस हिसाब से उनका रेट मुकर्रर होता है उस हिसाब से जमीन के हिसाब से रिश्वत वसूल की जाती है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है DC रावलपिंडी एंटी करप्शन रावलपिंडी के ऊपर, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाबंदी होने के बावजूद मुंशी हजरात पटवारियों के ऑफिस ठेके पर चला रहे हैं और जिसकी वजह से सालीन की जो कीमती रिकॉर्ड है वो भी महफूज ना है, क्योंकि कोई भी शख्स जाकर पैसे देकर रिकॉर्ड चेक कर सकता है। रावलपिंडी में इस वक्त जाली आदमी सोसाइटियाँ जो बहुत ज्यादा इस टाइम फैली हुई है, वो भी इनकी की सरबराही में कह रही है, चूँकि यहाँ से जाली फार्म बनवा कर सादा लो अवाम को रकबों का झांसा देकर लूटा जाता है, जिसकी वजह से कई एंटी करप्शन में दरखास्तें ज़ेर इल्तवा है, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। पटवारी से मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता किया गया, लेकिन पटवारी ने किसी किस्म का मौक़िफ़ देने से इनकारी हो गया, ना मौक़िफ़ दे दिया है। जिसके बाद फिर इस वीडियो को देखते हुए ये चीज़ वाज़ेह होती है कि इस रिश्वत कल्चर के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक अफसरान मुलव्वस हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भट्टी, आपने अपडेट किया।
लकी मरवत और नवाही इलाकों में इंसदाद डेंगू मुहिम जारी है। मज़ीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। शहरी इदारे की जानिब से डेंगू के खिलाफ मुहिम ज़ोर और शोर से जारी है। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में मच्छर मार धुआं छोड़ा गया। तहसील सरायनवरंग के मेयर हाजी अजीजुल्लाह खान मरबत की हिदायत और तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर किरामतुल्लाह खान की हुक्म पर शहरी इदारे की जानिब से डेंगू के खिलाफ मुहिम ज़ोर और शोर से जारी है। आज टंचियाबाद, TMA दफ्तर, धर्मखेल, ककी रोड, महल्ला अयूब खान, महल्ला ज़रबत शाह, महल्ला गुलबाज, महल्ला गुलशरीन, कोट का शेरजान, इस्लामिया टाउन, कोट का समत शाह, मदरसा दरुल हुदा, ककी रोड, कब्रिस्तान, महल्ला नजीफ शाह, अमीनाबाद, पितावी कला, कोट का ककीजान और बाज़ार में मच्छरों को मारने के लिए केमिकल का धुआं छोड़ा गया। तहसील सरायनवरंग के चेयरमैन हाजी अजीजुल्लाह खान मरवत ने शहरियों से भी अपील की है कि डेंगू की सदाबाब के लिए इंतज़ामिया इक़दाम कर रही हैं, ताहम शहरी जितना हो सके खुद को मच्छरों से। पत्तोकी में किसान आगाही मुहिम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें हेड ऑफ सेल्स जोन, नॉर्थ जोन FFC समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। मुकर्रीन का कहना है कि गंदम की अच्छी पैदावार के लिए गंदम की बजाय 20 नवंबर तक करें। काश्तकार गंदम की अच्छी पैदावार के लिए DAP, पोटामिन और नामियाती खादों का इस्तेमाल करें। आपको बताएं कि पत्तोकी में किसान आगाही मुहिम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें हेड ऑफ सेल्स जोन, नॉर्थ जोन FFC समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि गंदम की अच्छी पैदावार के लिए गंदम की बुझाई 20 नवंबर तक करें। काश्तकार गंदम की अच्छी पैदावार के लिए DAP, पोटामिन और नामियाती खादों का इस्तेमाल करें। कबीरवाला में फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम मकामी हस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त दवाइयाँ दी गईं। इस मौके पर हस्पताल एडमिन चौधरी मोहम्मद ज़ुबैर और डॉक्टर आमिर सत्तार का कहना था कि फ्री कैंप का मकसद गरीब मरीजों की दाद रसी करना होता है और हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। गुजरात शाह मुकीम में हाउसिंग सोसाइटी का इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट में। गुजरात शाह मुकीम में 3000 घरों का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया, जिसमें बेघर अफराद को इंस्टॉलमेंट पर घर फराहम किए जाएंगे। ये इलाका का वाहिद मुनफरिद हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें जिंदगी की तमाम तर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। चेयरमैन न्यू दीपालपुर सिटी राना हामिद रफीक ने गुजरात शाह मुकीम प्रेस क्लब के सहाफती वफद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन घरों की तकमील का आगाज ऐसे अफराद को मद्देनजर रखकर किया गया है जिनके पास घर खरीदने की इस्तात नहीं होती। ये अफराद आसान इंस्टॉलमेंट पर घर लेकर फौरी अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। इस मौका पर एडमिन ऑफिसर रब नवाज वट्टू ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ गुजरात शाह मुकीम या दीपालपुर के मकी बल्कि जिला भर के वसनीक इस्तेफादा कर सकते हैं। दूसरी जानब इलाका भर की जानब से इसे पहले से मौजूद सोसाइटियों से मुनफरिद करार दिया गया है। अलावा सैयद आसिफ अली शाह डिप्टी कमिश्नर पाकपतन, सैयद इकरार हुसैन शाह साबका चेयरमैन, चौधरी ताहिर यूसुफ। सदर गोगीरा में महकमा ज़राअत की ज़ेर एहतमाम गंदम उगाओ आगाही मुहिम के हवाले से सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में डायरेक्टर ज़राअत तौसीर साहिवाल चौधरी, मोहम्मद शहबाज अख्तर, ज़राई यूनिवर्सिटी दीपालपुर कैंपस के प्रिंसिपल डॉक्टर तारिक अजीज समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। आपको एक बार फिर बताएं कि सदर गोगीरा में महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम गंदम उगाओ आगाही मुहिम के हवाले से सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में डायरेक्टर ज़राअत तौसीर साहिवाल चौधरी, मोहम्मद शहबाज अख्तर, ज़राई यूनिवर्सिटी दीपालपुर कैंपस के प्रिंसिपल डॉक्टर तारिक अजीज समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान के वाइस चांसलर शकीबुल्ला अराई का टांग कैंपस का दौरा, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने उनके एहसास में तकरीब का इनेकाद किया। मज़ीद जानते हैं आदम खान कुंटी की इस रिपोर्ट में। शकीबुल्ला अराई ने सब कैंपस टांग का दौरा किया। सब कैंपस टांग में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें इलाका मुअज़्ज़िज़ीन टांग, नाज़मीन, स्कॉलर्स, दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियात और MPA महमूद खान ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर गुमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान शकीबुल्ला अराई ने कहा, तारीख है ये आपके सामने है। मुश्किल हालात में थोड़े से स्टाफ के साथ
इस कैंपस को शुरू किया गया और आज 6 साल इस कैंपस को कंप्लीट होने वाले हैं। प्रोजेक्ट फेज़ से ये अब बाहर आने वाला है और इसमें यकीनन गुमा यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ इलाके के जो लोग हैं इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। वाइस चांसलर शकीबुल आरई ने कहा कि जल्दी टांग में ला कॉलेज के लिए कोशिशें शुरू करेंगे। तकरीब के आखिर में MPA महमूद खान ने अपने खिताब में कहा, यहाँ पे कैंपस की बात हो रही है कि हमारा जो टांग गोमल यूनिवर्सिटी ये सब कैंपस है और इंशाल्लाह ये वीसी साहब इस इलाके के हैं। हम कोशिश करेंगे जो असेंबली एक्ट के ज़रिए से यूनिवर्सिटी बनती है, एक्ट के हवाले से अपोजिशन के जितने मेंबरान हैं और हुकूमत को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि टांग के लिए एक्ट के ज़रिए हम यूनिवर्सिटी का काम करें। सब कैंपस टांग में आला तालीम से तलबा मुस्तफीद हो रहे हैं। आरिफ वाला में सहाफ़ियों की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें सहाफ़ी बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। आरिफ वाला में MD कोहिनूर टीवी और इंचार्ज नुमाइंदगान एजाज डोगर और आरिफ वाला के सीनियर सहाफ़ी मलक शफीक की सालगिरह का केक काटा गया। सालगिरह की तकरीब का एहतमाम कोहिनूर टीवी के रिपोर्टर रजा जैदी और सीनियर सहाफ़ी मलक अमजद की रहायशगाह पर किया, जहां पर मलक अमजद की जानिब से शहर के मारूफ सहाफ़ी दोस्तों को मदऊ किया गया। सीनियर सहाफ़ी इनाम भट्ट मीडिया ग्रुप के हमरा केक काटा गया। मारूफ सहाफ़ियों में मिर्ज़ा इम्तियाज़, काशिफ रिजवान, डॉक्टर अल्लाह रखा, राना अतीक, जफ़र हुसैन, अकमल रहमानी, शफीक फूल, मोहम्मद सईद, काशिफ आबाद, एहसन भट्टी, नियाज रहमानी, मलक नईम, मिर्ज़ा असलम, अशरफ सलामत एडवोकेट ने शिरकत की। रजा जैदी और मलक अमजद ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। रजा जैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफ वाला। राजनपुर में सूफी बुजुर्ग का ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं समीउल्लाह कबूल की इस रिपोर्ट में। सुल्तान उल आशिकीन हफ्त ज़बान शायर बरे सगीर पाक व हिंद के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात आज दूसरे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। वली अहद दरबार फरीद ने कहा कि आज उर्स का दूसरा रोज़ है। महफिल समा और ख्वाजा फरीद कॉन्फ्रेंस भी है। उर्स का दूसरा रोज़ है तो दूसरे दिन आज महफिल समा होगी दरबार फरीद पर, जिसकी सदारत गद्दी नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद को एजाज़ साहब करेंगे और कौमी ख्वाजा फरीद कॉन्फ्रेंस दरबार फरीद पर होगी, जिसमें मुल्क भर से मशाइख खुज़ाम अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। और कल उर्स का आखिरी रोज़ है। इख्तामी महफिल होगी, इख्तामी दुआ होगी, उसके बाद तमाम आशिकान फरीद ज़ायरीन अपने घरों को लौट जाएंगे। उर्स की तकरीबात सिर्फ टीवी पर देखते थे, आज अल्लाह पाक के करम से दरबार पर हाजिरी नसीब हुई और कल्बी सुकून मिला है। आज तक हम टीवी पे सिर्फ देखते रहे कि क्या रसूमात हैं और यहाँ पे लोग हर साल उर्स पर कितनी बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन कभी मौका नहीं मिला था कि हम यहाँ पे आ सकें। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए और मैंने देखा कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंतजाम हैं, माहौल बहुत खूबसूरत है। संजयपुर की मकामी मस्जिद में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं जाम ज़मीर की इस रिपोर्ट में। संजयपुर कासमाबाद कासमिया मस्जिद में भी माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से महफिल मिलाद का इनका एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत की। आशिकान रसूल की जानिब से महफिल मिलाद में तिलावत कुरान पाक, नात खानी और तकरीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर इंतजामिया सैयद मजहर सुल्तान जैलानी का कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक्सर के नुमाया पहलू को उजागर करना और नई नस्लों को आपके सुनहरी तालीमात से आगाह करने के लिए महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक तमाम इंसानों के लिए मशअल राह है और उनकी इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी ने जहालत को ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि उन्होंने इंसानियत को ऐसी राह दिखाई कि इसके बाद इल्म जस्तजू के नए अबवाब खोल गए। इंतज़ाम सैयद मजहर सुल्तान शाह जैलानी, दावत में मेहमान ख़ास सैयद इमाम शाह जैलानी, सैयद अहमद रज़ा शाह जैलानी, सैयद सफदर हुसैन शाह जैलानी, सैयद सईद अहमद शाह जैलानी, साफ़ी जाहिद बलोच और कसीर तादाद आशिकान रसूल ने शिरकत की। इस मौके पर महफिल मिलाद में लंगर का भी वसी निज़ाम किया गया। मुस्तफ़ाबाद में महफिल हमदोनात का इनेकाद किया गया। सदारत मौलाना कारी खलील अहमद ने की। मज़ीद जानते हैं उमर शाहीन की इस रिपोर्ट में।
मदरसा मारुफुल कुरान एजुकेशनल ट्रस्ट में सालाना महफिल हमदोनात का इनेकाद किया गया। महफिल हमदोनात की सदारत मौलाना कारी खलील साहब ने की। महफिल हमदोनात का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के मशहूर कारी सैयद इनवार हुसैन शाह साहब ने तिलावत की और नात के लिए मुल्क पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सना खानों ने शिरकत की, जिसमें शाहिद इमरान आरफी, हाफिज मुनीर अहमद, कारी आसफ रशीदी, सैयद अजीजुर रहमान शाह साहब और जफर शहजाद गुज्जर, हाफिज अब्दुल बासित, कासिम गुज्जर ने हमदोसना बयान की। खसूसी खिताब हजरत मौलाना अब्दुल हनान सदीकी ने दिया। महफिल में सियासी, समाजी, मजहबी नुमाइंदों और सहाफ़ियों समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल के एहतमाम पर मुल्कुल कौम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।